Welcome, friends, in today's session for the subject called Business Regulatory Framework. And currently, friends, we are dealing with special contracts of Unit 3 under Indian Contract Act 1872. The chapter which we are dealing right now with is agency. Chapter currently we are dealing with is agency. Let's have today's question based on the chapter. Under what circumstances agent is personally liable, or when an agent is personally liable can be asked to you in a examination. Now we are going to discuss what are the personal liability ultimately of an agent as and when he makes contract with third party on behalf of principal. What are the situations, what are the circumstances, what are the events in which he is personally liable under the contract? So let's deal with the important one of the important question. Let's have its introduction first. Generally, in a contract of agency, an agent being a person employed to create relationship between his principal and the agent, an agent can neither enforce the contract personally nor he is personally liable under the contract unless there is a contract to the contrary. However, there are circumstances when the agent becomes personally liable. Generally, what happens? There is no personal liability of agent under the contract. No terms and conditions are kept under the contract which reveals that the agent is personally liable. But depending on the situations that happens while doing transactions, which the transactions made by the agent under the contract of agency, there may be loss bear or borne by the third party, maybe third party, or it may be the principal himself on behalf of whom the agent is acting, is working, is appointed. जनरली क्या होता है सर, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट की कोई पर्सनल लायबिलिटी बनती नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया जाता है नॉर्मली कि आप पर्सनली लायबल रहेंगे ये सिचुएशन में। एक आध दो प्रोविजन हो भी सकती छोटी मोटी, लेकिन जनरली ये ऐसा नहीं किया जाता है। उसको जो राइट्स एंड पावर्स दिए गए हैं उसी राइट्स और पावर्स के हिसाब से वर्क करेंगे एजेंट। बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द पावर वो नहीं जा सकते। यही सर्कमस्टेंसेस, इफ दे गो बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द पावर, देन दे आर पर्सनली लायबल। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होगी जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल होगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एज पर सेक्शन 30। पहली सिचुएशन आएगी when the agent acts on for a foreign principal, when the agent acts for a foreign principal। सेक्शन 30 पैरा 1 के हिसाब से इसकी चर्चा है। where the contract is made by an agent for sale or purchase of goods for a principal, or we can say for a merchant residing abroad, the agent is presumed to be personally liable. He is presumed to be personally liable। सबसे पहली सिचुएशन क्या आ रही है सर इसके अंदर कि एजेंट काम तो कर रहा है लेकिन उस मालिक के लिए, उस प्रिंसिपल के लिए, उस मर्चेंट और ट्रेडर के लिए काम कर रहा है जो भारत में नहीं रह रहा है, वो तो विदेश में रहता है, फॉरेन प्रिंसिपल है, मालिक विदेशी। अब एजेंट यहाँ पे भारत के अंदर है मान लीजिए, और एजेंट उसके लिए काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? उस सिचुएशन में एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है, बन सकता है, उसे ही पर्सनली लायबल माना जाएगा। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब अगले पॉइंट में यानी कि अगले स्टेटमेंट में आ रहा है। इन द केस ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल, दिस रूल इज अडॉप्टेड एज द थर्ड पार्टी डज नॉट नो द क्रेडिट ऑफ सच फॉरेन प्रिंसिपल। थर्ड पार्टी जो होगी सर, वो तो फॉरेन प्रिंसिपल से मिला भी नहीं होगा, उसको जानता भी नहीं होगा, वो फैमिलियर ही नहीं है उससे, वो परिचित ही नहीं है, बंदा कौन है, कैसा है, उसकी क्या क्रेडिट है, कुछ नहीं मालूम उसे, उसकी क्या गुडविल है, क्या प्रेस्टीज है मार्केट में। फॉरेन प्रिंसिपल से वो परिचित नहीं है थर्ड पार्टी।
ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा सर, अल्टीमेटली वो जिसे जानेगा उसके पास ही जाएगा ना। गुड्स तो वो एजेंट से खरीदेगा, एजेंट भारत में प्रेजेंट है तो वो व्यवहार जो करने वाला है वो तो एजेंट से करने वाला है। तो वो तो सिर्फ एजेंट को ही जानता है, फॉरेन प्रिंसिपल को तो जानता नहीं है, ना उससे कांटेक्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में जनरल रूल ये कहता है दैट इन सच सिचुएशन एजेंट इज लायबल पर्सनली। तो यहाँ एजेंट की लायबिलिटी बन जाती है। Thus a foreign party is not a party to the contract at all. यहाँ जो फॉरेन प्रिंसिपल है उसे पार्टी ही नहीं माना जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ही इज नॉट एट ऑल पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन देयरफॉर नाइदर शू नॉर बी शू। यानी प्रिंसिपल सिर्फ नाम का रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। प्रिंसिपल के पास तो कोई अथॉरिटी ही नहीं रहेगी इस सिचुएशन तरीके से। सो अ फॉरेन पार्टी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, उसे पार्टी माना ही नहीं जाएगा और ना ही वो केस कर सकता है, ना ही हम उस पर केस कर सकते हैं फॉर एनी रिकवरी। ऐसा हो जाएगा। थर्ड पार्टी हैज नॉट देयर, उसके पास ये अधिकार नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी अगर किसी के पास क्लेम करना चाहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट है जिससे वो क्लेम कर सकता है। तो एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है, कब बन जाती है, जब उसका जो मालिक है विदेशी, when the agent acts on behalf of foreign principal, तो वहां पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की बनती है। थर्ड पार्टी कैन रिकवर एनी लॉसेस फ्रॉम एजेंट। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, दूसरे ड्यूटी पे चलते हैं। दूसरी ड्यूटी क्या है एजेंट की, वाट सॉरी ड्यूटी नहीं, क्या लायबिलिटी है एक्चुअली, ये पॉइंट बनता है। पर्सनली लायबल कब होगा एजेंट, दूसरी सिचुएशन क्या है, when the agent acts for an undisclosed principal। undisclosed principal का दूसरा नाम क्या होगा, unknown principal। प्रिंसिपल पता ही नहीं कौन है, प्रिंसिपल को छुपा दिया गया, अननोन प्रिंसिपल, गुमनाम जिसे हम कहते हैं, पता ही नहीं प्रिंसिपल कौन है। इस सिचुएशन में भी अगर एजेंट काम करता है तो क्या उसकी लायबिलिटी है, क्या वो पर्सनल लायबल है? हाँ सर, वो पर्सनल लायबल है एज पर सेक्शन 230 पैरा 2 के हिसाब से। So where an agent does not disclose the name of the principal and contracts in his own name, the agent is personally liable for such contracts also। एजेंट जो है सर अपने मालिक का नाम डिस्क्लोज नहीं करता है और अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ये बात होगी कि एजेंट अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, सारी अथॉरिटी अपने पास ले ले रहा है, ऐसी बात होगी। अपने नाम पे व्यवहार कर रहा है तो सर ऑब्वियस है वहां पे एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। एक तरीके से एजेंट ही व्यवहार कर रहा है, एजेंट ही मालिक हो गया, ऐसी बात हो गई। Where the agent has no authority to disclose neither the name of the principal nor existence of the principal is called an undisclosed principal। undisclosed principal कौन होगा सर, उसे कब कि भाई अननोन प्रिंसिपल है, कैसे पता चलेगा, जहां पे एजेंट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो अपने मालिक का नाम बताए या उसका अस्तित्व बताए। वो डिस्क्लोज ही नहीं कर सकता, वो बता ही नहीं सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं, यानी वो अपने नाम पे ही व्यवहार कर रहा है, ऐसा हो गया ना। ही इज मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इन हिज ओन नेम। तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, वही हुआ था पहले पॉइंट में, ही इज पर्सनली लायबल। द एजेंट कंसील्स द फैक्ट्स दैट he is acting in as an agent। The third person should not know that the person is acting as an agent। एजेंट क्या करेगा सर, ये छुपाने की कोशिश करेगा कि भाई ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, कंसील्स द फैक्ट दैट इज, यानी छुपाने की कोशिश करेगा कि वो एजेंट है ही नहीं, वो मालिक ही है, वो ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। एजेंट यहाँ पे एजेंट के तौर पे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, वो मालिक है ऐसा वो दिखाने की, ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। द थर्ड पर्सन डज नॉट नो दैट द पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट। थर्ड पर्सन को भी ये नहीं पता है कि भाई ये एजेंट है, उसे यूं ही लगता है कि ये प्रिंसिपल ही है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। सो थर्ड पर्सन को भी नहीं पता है कि ये एजेंट है, बल्कि उसे यूं लगता है कि ये प्रिंसिपल है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। वेयर द थर्ड पर्सन नोस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर ऑफ नेम इज नॉट एसेंशियल एंड द एजेंट कैन नॉट बी मेड पर्सनली लायबल। एक सिचुएशन में एजेंट पर्सनली लायबल नहीं, थर्ड पर्सन को पता हो कि ये मालिक नहीं,
ये एजेंट ही है। अगर उसको ऐसा पता चल जाता है तो उस सिचुएशन में एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल। वहां फिर मालिक का नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता हो कि नहीं मालिक है, इसके ऊपर भी एक आदमी है, इसका मालिक है, ये तो एजेंट है। अगर उसे ऐसा पता चल जाता है, इफ ही इज हैविंग सच नॉलेज, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस एजेंट इज नॉट पर्सनली लायबल। तीसरी सिचुएशन में देखते हैं व्हेन एजेंट इज पर्सनली लायबल, व्हेन प्रिंसिपल कैन नॉट बी शूड। जहां पे प्रिंसिपल पे केस नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो वहां पे भी एजेंट ही पर्सनली लायबल माना जाएगा एज पर सेक्शन 230 पैरा 3, where the principal, though disclosed, cannot be sued, agent is personally liable। हमें पता है कि मिस्टर एक्स प्रिंसिपल है और मिस्टर वाई उसका एजेंट है, फिर भी हम मिस्टर एक्स पे केस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, तो वहां पे एजेंट पर्सनली लायबल होगा। ऐसी तो क्या सिचुएशन हो गई कि हम प्रिंसिपल पे केस नहीं कर सकते, उसको जानते हैं अच्छे से फिर भी हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, ऐसा तो क्या होगा? Which situation is there? Under such situation, the third person cannot file a case against principal for the recovery of losses, and in that circumstances also agent is personally liable। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। where the principal is a minor or of unsound mind, the presumption is that the third party gave credit to the agent, hence the agent is personally liable under the contract। जहां पे प्रिंसिपल अगर माइनर बंदा है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, थर्ड पार्टी ने जो भी व्यवहार किया है किसके बेसिस पे किया है, एजेंट के बेसिस पे किया है। एजेंट की छाप देख के, उसकी शाख देख के, उस क्रेडिट देख के उससे व्यवहार किया है। प्रिंसिपल तो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, यानी वो है या न है के बराबर हो गया एक तरीके से। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है बिकॉज ही इज नॉट स्टेबल पर्सन, ही इज नॉट मैच्योर पर्सन, ऐसी सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, वहां पे भी एजेंट पर्सनली लायबल होगा। अगर कुछ नुकसान हुआ थर्ड पार्टी को, देन ही कैन क्लेम फॉर सच लॉसेस डायरेक्टली टू एजेंट ओनली। यहाँ पे भी एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है अगर प्रिंसिपल साउंड माइंड का नहीं हो, माइनर बंदा हो, ऐसी सिचुएशन है कुछ, तो वहां पे वो पर्सनली लायबल होगा एजेंट। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं, व्हेन द एजेंट मेक्स हिमसेल्फ एक्सप्रेसली लायबल। व्हेन द एजेंट मेक्स हिमसेल्फ एक्सप्रेसली लायबल। कभी कभी होता है ना, हम अपनी लायबिलिटी खुद एक्सप्रेस कर देते हैं कि अगर देख मेरा ये दोस्त नहीं देगा तो मैं पे कर दूंगा। हम एक्सप्रेस कर देते हैं, हम कह देते हैं, लिख देते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कोई भी नुकसान हुआ आपको तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी लायबिलिटी। जो एजेंट अगर ऐसा करता है तो फिर उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी, अपने हाथ पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, सकते पाँव पे या हाथ पे कुल्हाड़ी मारती है, ऐसा समझ लीजिए। यानी उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ऐसा अगर उसने कह दिया तो फिर अगर लॉस होता है तो प्रिंसिपल की यहाँ वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, वहाँ उसने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक तरीके से, ऐसा हो जाता है। When an agent expressly agrees to be liable while entering into a contract, when an agent expressly agrees to be liable while entering into a contract and the third person agrees to it, that circumstances also the agent becomes personally liable। एजेंट खुद एक्सप्रेसली कह देता है एग्रीमेंट के अंदर कि भाई जो भी नुकसान अगर आपको हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, आई विल कॉम्पेंसेट, आई एम लायबल फॉर इट। अगर आप एक्सप्रेसली ऐसा कह देते हैं तो फिर एज एन एजेंट यू आर पर्सनली लायबल। तो वहाँ प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा सर? प्रिंसिपल कैन नॉट इंटरवेन where he is expressly or impliedly excluded from the contract। यानी प्रिंसिपल का अंदर नामो निशान नहीं है। एक तरीके से एजेंट ने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है,
वही प्रिंसिपल बन गया, यूं समझ लीजिए इस सिचुएशन के अंदर। यहाँ प्रिंसिपल का कोई रोल ही नहीं, ही कैन नॉट इंटरफियर और वी कैन से इंटरवेन वेयर ही इज एक्सप्रेसली डिनाइड एक्सक्लूडेड फ्रॉम, उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल ही नहीं किया गया, उसका नाम भी नहीं लिखा गया, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो वहाँ प्रिंसिपल है ही, वहाँ एजेंट ने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एक तरीके से, तो पर्सनल लायबिलिटी बनती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर। एन ऑक्शनर ऑफ प्रॉपर्टी signing agreement of sale in his own name without qualification must be understood to contract personally and not as an agent. ऑक्शनर एजेंट होता है, टाइप्स ऑफ एजेंट में हमने पढ़ा है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर ऑक्शनर ऑल्सो। ऑक्शनर कौन होता है सर? जो नीलामी करता है प्रॉपर्टी की, ठीक है, और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसकी फेवर में वो प्रॉपर्टी बेची जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो एन ऑक्शनर ऑफ प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं सर? एन ऑक्शनर ऑफ प्रॉपर्टी साइनिंग एग्रीमेंट ऑफ सेल इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे ये ऑक्शनर एक एग्रीमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी बेचने के लिए। विदाउट क्वालिफिकेशन मस्ट बी अंडरस्टूड टू कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली एंड नॉट एज एन एजेंट, मीन्स अपने प्रिंसिपल से उसने कोई परमिशन नहीं ली है, अपने मालिक से कोई परमिशन नहीं ली है ऐसा एक्ट करने के लिए, और वो अपने नाम पे ये ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे वो एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा है, वो पर्सनल काम कर रहा है, अपना खुद का फायदा देख रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं। एजेंसी ऐसे पूछ ले शायद आपको, एक्सप्लेन एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। तो एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी डबल फायदा होने की बात की जा रही है, एजेंट को डबल फायदा हो रहा हो, कपल ऑफ बेनिफिट्स आर रिसीव्ड बाय एजेंट, ये वो सिचुएशन एज पर सेक्शन 202। तो होता है कभी कभी हमें दो दो फायदे हो रहे होते हैं, एक कमीशन तो मिलना ही मिलना है, प्लस मेरा जो बाकी था पेमेंट लेना वो भी मिल जाएगा, ये जो व्यवहार है उसमें से कमीशन तो मिलना ही मिलना है, और साथ साथ में मेरा जो पुराना पेमेंट सेठ जी से लेना है वो भी मिलना मिलना है। तो दो दो फायदे होते हैं। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो देखते हैं कैसी सिचुएशन है और क्या लायबिलिटी बनती है, कितनी लायबिलिटी होगी एजेंट की। where the contract with the third party where the contract with the third party relates to a subject matter in which the agent has a special interest, agent is personally liable to the extent of his interest because he is really a principal to that extent and his authority is said to be coupled with interest। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि थर्ड पार्टी से अगर हम कोई व्यवहार करने वाले हैं तो उस थर्ड पार्टी से जो भी फायदा होने वाला है उसमें एजेंट को डबल बेनिफिट होने वाला है। पहला बेनिफिट क्या होगा? जो व्यवहार होगा उसमें से हो सकता है उसका पुराना जो लायबिलिटी है, पुरानी जो उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल के पास पड़ी हुई है, मीन्स प्रिंसिपल ने मान लीजिए एजेंट को 40,000 रुपये देने हैं पहले के, तो 40,000 तो एजेंट को मिलने ही मिलने, ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो प्रिंसिपल ने कहा उसको कि ये प्रॉपर्टी आप बेच दो, उसमें से जो भी रकम आएगी उसमें से आपका पुराना हिसाब हो जाएगा, 40,000 रुपये जो मुझे आपको देने हैं मैं दे दूंगा। तो ऐसा एक ट्रांजैक्शन हो सकता है। साथ साथ में एजेंट का ये 40,000 तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस प्रॉपर्टी पे तो उसका फायदा हो सकता है ना, जैसे उसको एक और कमीशन मिलने वाला है, ये समझ लीजिए प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज मिलेगा इसके ऊपर, तो वो उसका दूसरा फायदा, एक तरीके से डबल बेनिफिट हो गया। दो दो फायदे हो गए, एक व्यवहार तो उसे रेगुलर जो व्यवहार हो करना ही करना है और पुराना हिसाब भी चुकता हो जाएगा, डबल बेनिफिट हो गया, डबल स्कीम हो गई उसके लिए एक तरीके से। सो इस सिचुएशन में जहां पे उसका स्पेशल इंटरेस्ट है, एजेंट इज पर्सनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट, जितना उसका इंटरेस्ट है, जितना उसका वो सोच रहा है कि मुझे इतना फायदा तो इसमें से होना ही चाहिए, उतनी ही लायबिलिटी उसकी बनती है, उससे ज्यादा उसकी कोई लायबिलिटी बनती है, बिकॉज ही इज रियली अ प्रिंसिपल एंड सेड टू बी कपल्ड विद। अब वो सिर्फ अपना फायदा देखने की कोशिश करेगा इस सिचुएशन में, जैसे हो वैसे ये प्रॉपर्टी जल्द से जल्द बेची जाए,
तो जितना उसका हिस्सा बनता है ना उस प्रॉपर्टी के अंदर, जितनी रकम लेनी निकलती है उसकी, उतनी ही उसकी लायबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा की उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। 20 लाख का मकान है, 1 लाख लेने के निकलते हैं मालिक से, तो 1 लाख तक की उसकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं। बाकी के 19 लैक्स की लायबिलिटी प्रिंसिपल की रहेगी अगर कोई नुकसान होता है थर्ड पार्टी को तो। इन सच केसेस ही मे sue in his own name or be sued but only to the extent of his interest in the subject matter। उसका इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख तक का ही है, तो वो 1 लाख की रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी को वो भी केस कर सकता है या थर्ड पार्टी जो एजेंट को केस कर सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, किसे नुकसान हो रहा है और कौन केस करने के लिए आगे आ रहा है। एक एग्जाम्पल रखा है, ऐसे तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स ऑथोराइजेस वाई टू सेल इज फ्लैट। एक्स अथॉरिटी दे रहा है वाई को कि वो मकान बेचे। एक्स प्रिंसिपल है, वाई एजेंट है। जब तक आप पार्टीज नहीं समझेंगे आप ये पॉइंट्स अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले की कोशिश करिए, कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टी है, क्या व्यवहार हो रहा है। एक्स इज अ प्रिंसिपल, मालिक है, वो अथॉरिटी देता है वाई को यानी कि एजेंट को कि उसका मकान बेच दे, मीन्स प्रिंसिपल का, मालिक का मकान बेच दे। और जो भी बिक रहा है उसमें से आप अपना जो लायबिलिटी है यानी कि पुराना जो आपका डेप्ट है वो आप रिकवर कर लीजिए। आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स टू आउट टू पे हिमसेल्फ द डेब्ट्स ड्यू टू हिम फ्रॉम एक्स। एक्स ने जो भी उसे पे करना था वो पे कर आप उसमें से ले लीजिए। मान लीजिए 50 लाख का बंगला है और एक्स ने वाई को 50 लाख का बंगला पे करने के बेचने के लिए बोला है। 50 लाख में से 5 लाख का रकम, 5 lakhs का रकम आउटस्टैंडिंग है जो वाई ने एक्स से लेना है, पहले के बाकी है उससे लेने प्रिंसिपल से। तो एक्स क्या कहता है, एक अच्छी स्कीम दे देता है उसे, एक काम करिए, एक तीर से दो निशाना लगाइए। एक, आप ये मकान बेच दीजिए, इससे जो भी रकम आएगी उसमें से आप अपना पुराना जो भी डेप्ट है वो आप रिकवर कर लीजिए। 50 लाख में अगर बिक जाता है, आप ये मकान बिक जाता है तो आप 5 लाख उसमें से रिकवर कर लीजिएगा। प्लस इस मकान को बेचने के ऊपर जो उसे और बेनिफिट मिलने वाला है यानी ब्रोकरेज वगैरह जो मिलने वाला है, उसकी जो भी इनकम है उसके ऊपर वो भी उसे मिलेगा। यानी यहाँ पे वाई ऑथोराइज्ड अथॉरिटी इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट, उसके दो दो बेनिफिट होने वाले, एक पुरानी रकम मिल जाएगी, साथ साथ में अभी जो करंट उसका ब्रोकरेज उसे मिलना चाहिए वो भी उसे मिलेगा। उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ जितनी रकम उसकी निकलने की रहती है, उससे ज्यादा 1 रुपया उसे देना नहीं। पॉइंट नंबर 6 के पास चलते हैं और पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, वेर एन एजेंट मिस रिप्रेजेंट्स और कमिट्स फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड क्या है दोस्तों, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्रॉड का सेक्शन अगर आपको याद हो सेक्शन 17 है, और मिस रिप्रेजेंटेशन का सेक्शन अगर आपको याद हो तो सेक्शन 18। इन दोनों के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, एजेंट जो है मिस रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट बोल देते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जानबूझ के बोला हो या गलती हो गई हो। इट मे बी एन इनोसेंट मिस्टेक और इट मे बी एन इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के भी बोला गया झूठ हो सकता है या इनोसेंट मिस्टेक हो सकती है, झूठ नहीं बोलना चाह रहे थे बट बाय मिस्टेक झूठ बोल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन गलती तो हुई है ना। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, एजेंट ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है किसी स्टेटमेंट का या फ्रॉड कमिट किया है सर, तो एज पर सेक्शन 238 वहां पे भी वो पर्सनल लायबल होगा टू द थर्ड पर्सन। द एजेंट विल बी पर्सनली लायबल व्हेन ही मेक्स मिस रिप्रेजेंटेशन और where he commits fraud, where an agent receives from or pays money to a third party by mistake or fraud, he is personally liable to the third party। थर्ड पार्टी के बिहाफ, थर्ड पार्टी के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, मीन्स एजेंट तो आपको अच्छे से पता ही है, ही इज एन एक्टिंग पर्सन, ही इज एन ज्वाइनिंग पर्सन, कनेक्टिंग पर्सन बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो एजेंट जो भी रकम रिसीव कर रहा है थर्ड पार्टी से,
यहाँ थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट करना है एज पर द ट्रांजेक्शन, या तो रिसीविंग होगा या तो पेमेंट होगा, रिसिप्ट या पेमेंट की बातें होगी अल्टीमेटली। तो इसकी बेसिस पे जो भी गड़बड़ हुई है, या मिस्टेक हुई है, इनोसेंट मिस्टेक हुई है, या फ्रॉड किया गया है, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है हिसाब किताब में, तो वहां पे एजेंट पर्सनली लायबल बनता है टू द थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। मिस्टर जे enters into a contract with Mr. A to sell him 300 bales of cotton, and afterwards discovers that A was acting as an agent for S. J may sue either A or S or both for the price of the cotton. सिचुएशन समझते हैं। जे जो है, जे एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ ए। जे जो है थर्ड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट्स की पार्टी समझनी पड़ेगी पहले आपको। जे जो बंदा है मिस्टर जे, वो कौन है? थर्ड पर्सन, ही इज अ थर्ड पर्सन। ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर ए। ए कौन है सर? वो ए जो है एजेंट है, टू सेल हिम 300 बेल्स ऑफ कॉटन। कॉटन की जो बेल्स है 300 बेल्स है, 300 गठान मंगाई है कॉटन की, मार्केट लैंग्वेज है। तो ये जो 300 बेल्स ऑफ कॉटन है, ये ए जो है ही इज गोइंग टू डिलीवर टू जे। Afterwards discovers that A was acting as an agent of S. बाद में जे को पता चलता है कि ए तो एस का एजेंट है। पहले नहीं पता था, पहले नहीं पता था उसे यूं ही लगा कि शायद यही प्रिंसिपल है। यहाँ छुपाया गया हो, एजेंट मालिक के तौर पे काम कर रहा है ऐसा उसने रिप्रेजेंट किया हो। यहाँ हो सकता है उसने अपने मालिक की आइडेंटिटी छुपाई, एक तरीके से फ्रॉड किया। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, छुपा रहे हैं जानबूझ के, अपने मालिक की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ तो आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, यहाँ तो आपने फ्रॉड किया है। जानबूझ के किया है तो फ्रॉड किया है, गलती से हो गया तो मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी गलती तो हुई है शॉर्ट में। तो यहाँ पे जे को अगर कुछ रिकवरी करनी हो, अगर जे को कुछ नुकसान होता है इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो जे ये भरपाई किससे कर सकता है? या तो वो ए का संपर्क करेगा एजेंट का, या तो वो एस का संपर्क करेगा। यहाँ शायद दोनों को लायबल कर दे इस सिचुएशन में। इसके पास ये अधिकार है, वो डिसाइड करेगा कैसे आगे चलना है फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉटन। Where the agent appoints sub-agent without authority. Where the agent appoints sub-agent without authority as per section 193. एजेंट और सब एजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। एजेंट सब एजेंट कब अपॉइंट करेगा सर? जब उसका काम बढ़ जाता है नॉर्मली, या प्रथा चलती आ रही हो, कस्टम्स हो, ऐसा कस्टम्स एंड ट्रेडिशन हो कि भाई इस हमारे एजेंसी के बिजनेस में एजेंट का सब एजेंट तो होता ही होता है, ऐसी प्रथा चलती आ रही हो तो भी उसकी अपॉइंटमेंट बन सकती है। सो वेर एन एजेंट विथआउट ऑथोरिटी, परमिशन नहीं ली, परमिशन ले लेनी चाहिए कि सर मेरा काम बढ़ गया है, सेठ जी मेरा काम बढ़ गया है, तो मैं अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट कर लूं। ऐसा पूछ लेने में क्या जाता है, पूछ लेना चाहिए। वेर एन एजेंट विथआउट ऑथोरिटी अपॉइंट्स अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, under such circumstances the agent becomes the principal of the sub agent, and the agent is liable both the principal and the third party. बहुत ही सुपर पॉइंट है ये। बिना अधिकार के, विथआउट ऑथोरिटी विथआउट कंसेंट, अगर एजेंट सब एजेंट की अपॉइंटमेंट करता है, सब एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है सर? ओरिजिनल एजेंट ही करता है। नॉर्मली ओरिजिनल एजेंट सब एजेंट कब अपॉइंट करता है दोस्तों? जब उसका काम बढ़ जाता है, या जो एजेंसी के अंदर एजेंट की अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ ये प्रथा चली आ रही होती है एज पर द कस्टम्स। तो प्रथा के हिसाब से शायद वो सब एजेंट की अपॉइंटमेंट कर ले कि नहीं, हमारे इस एजेंसी के बिजनेस में सब एजेंट होता ही होता है, एजेंट के अंदर एक बंदा काम करता ही होता है, तो वहाँ उसकी अपॉइंटमेंट करनी है अपनी।
लेकिन अगर कार्यभार बढ़ जाता है ओरिजिनल एजेंट का, तो वो अपने अंडर एक सब एजेंट की अपॉइंटमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार प्रिंसिपल से पूछ लेना चाहिए, परमिशन ले लेनी चाहिए, क्या मैं अपना काम कम करने के ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल वहाँ स्पष्ट कह देगा हाँ आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो आप जवाबदार होंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अंडर सच सर्कमस्टांसिस द एजेंट बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंट के लिए मालिक कौन होगा? ओरिजिनल एजेंट। और एजेंट, सब एजेंट से अगर कोई नुकसान हो रहा है तो सब एजेंट इज लायबल टू ओरिजिनल एजेंट, एंड ओरिजिनल एजेंट इज लायबल टू बोथ द पार्टीज, प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन, दोनों को पर्सनली लायबल हो जाएगा इस सिचुएशन में। गलत काम कौन करने वाला है? अगर होता है तो सब एजेंट करेगा, तो सब एजेंट किसको लायबल होगा? एजेंट। अब क्योंकि सब एजेंट की अपॉइंटमेंट एजेंट ने की है, तो फिर एजेंट पर्सनली लायबल दोनों को होगा, प्रिंसिपल को भी होगा अगर प्रिंसिपल को कुछ नुकसान हो रहा है तो, यहाँ अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है तो, यहाँ दोनों को हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। वेर एन एजेंट एक्ट्स बियॉन्ड हिज ऑथोरिटी, आपको जितनी अथॉरिटी दी गई हो उसी अथॉरिटी, उसी पावर के अंदर आपने काम करना चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, जितनी हमारी, हमें जितनी स्कोप दी गई है उतनी ही स्कोप के अंदर हमने काम करना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना, उतने क्षेत्र के अंदर ही हमें काम करना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका खास ध्यान रखना है। आप बाहर, क्षेत्र के बाहर कब जाएंगे सर? आपको बोला गया हो कि आपने बिजनेस, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं एज एन एजेंट, आपने कैश ट्रांजेक्शन ही करना है। फिर भी आपने अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर दिया तो क्या? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने में रिस्क है। कल को अगर पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई या पेमेंट नहीं दिया, बैड डेब्ट्स हो गए, तो क्या करेंगे सर? रिकवरी नहीं हो रही है, तो वहां पे आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। आपकी लिमिट से ऊपर जाके आपने काम किया है सर, यू हैव एक्टेड बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द अथॉरिटी। आपको अधिकार ही नहीं उधार माल बेचने का और आप उधार माल बेच के आ गए। या हो सकता है उधार माल बेचने में आपको लिमिट दी गई, आपको कहा गया हो कि 10 लाख से ज्यादा का उधार माल आप नहीं बेच सकते, और आपने एक ही पार्टी को 12 लाख का या 15 लाख का माल बेच दिया हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वहां पे यू हैव एक्टेड बियॉन्ड योर लिमिट्स, बियॉन्ड योर लायबिलिटी, जिसके लिए पर्सनली आप लायबल माने जाएंगे एज एन एजेंट। सो व्हेन एन एजेंट हैज नो अथॉरिटी और एक्ट्स बियॉन्ड हिज अथॉरिटी और एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, यहाँ तो अधिकार ही नहीं है, यहाँ तो अपने अधिकार से ज्यादा का कुछ काम कर लिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उधार माल बेचने का अधिकार ही नहीं है फिर भी उधार माल बेचा, नो अथॉरिटी। दूसरा है जो अथॉरिटी है उसके पास, उससे ज्यादा उसने काम किया है, मीन्स एक्सीड कर दी अपनी अथॉरिटी को, यानी कि आपको लिमिट दी गई हो कि आपने 10 लाख का क्रेडिट गुड्स बेचना है और आपने उससे ज्यादा बेच दिया, एक ही पार्टी को बेच दिया हो, ऐसा भी हो सकता है 12 लाख 15 लाख का, तो यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट्स। तो वहां पे क्या हो जाएगा सर? ही कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर ब्रीच ऑफ अथॉरिटी। आपको जो अधिकार दिया गया उस अधिकार का आपने भंग किया है और इसके लिए आप पर्सनली लायबल माने जाएंगे। ही विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस कॉस्ट बाय सच अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरीके से आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ही माना जाएगा, क्योंकि आपको उधार माल बेचने की अथॉरिटी नहीं है और आप उधार माल बेच रहे हो, तो एक तरीके से आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, फ्रॉड कर दिया, ऐसा भी मान सकते हैं। गलत काम कर दिया, आपके पास ये सत्ता ही नहीं है, पावर ही नहीं है और आपने ये काम कर दिया ऐसे, तो इसके लिए जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस एज अ कॉम्पेंसेशन आपको पर्सनली पे करना पड़ेगा। द एजेंट विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल वेयर द अथॉरिटी हैज बीन टर्मिनेटेड बट ही परस्यूड हिज अथॉरिटी। ऐसा भी हो जाता है कि पहले आपको उधार माल बेचने की अथॉरिटी थी, उसके बाद आपकी ये अथॉरिटी आपसे छीन ली गई हो, टर्मिनेट कर दी गई हो कि अब से आप उधार माल नहीं बेचेंगे, आप सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप उधार माल बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो उसकी जो भी लायबिलिटी, जो भी नुकसान हो रहा है, उसकी जो भी आ, आ, खर्चा हो रहा है, कॉम्पेंसेशन, यानी जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस एज ए कॉम्पेंसेशन आपको पे करना ही पड़ेगा। यू आर पर्सनली लायबल अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस।